Hello, Patel, is my screen visible to you? Hello. Hello. Hello, madam. I'm Am not I able to audible to listen you? the voice. No, 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 no. I'm not audible in your voice. Okay. Am I clear to you? Is my voice clear to you? Yeah, yeah. Is my screen visible to you? Okay, okay. Skin is visible. Thank you, thank you. Okay, we'll start we must start with the second unit. I hope you understood the first unit. It is related to the environmental management, its aspect, how it will going to work, and what are the possibility and what are the major 8 pillars of the environmental management. जहाँ जहाँ भी हम मैनेज करने के लिए बात करेंगे एनवायरमेंट को वहाँ वो बेसिक 8 पिलर से ही शुरुआत होगी और वो 8 पिलर के आगे ही हर चीज डिफाइन होगी यू नो बट first that 8 pillars are important. Now we are moving towards the policies and legal aspects of the environmental management. See, now each and every units are turned to be based on to that one of the pillar. Okay, we have already seen policies and legal aspects of the EM as a one of the major principal pillars of the environmental management. So here we are have to go in depth with that. So before going into the depth of pillars, before going to depth of policies, I would like to know, would you know what are the policies, anything which is a major act for the environment in our constitute? Do you know related to this? किसी को पता है कि हमारे कंट्री के जो संविधान है उसमें कुछ तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट होगा कुछ होगा ऐसा किसी को पता It है is the Environment Protection Act or rule, no? yeah that is a environment protection act which was established in 19 and most important it is the umbrella act उसके अंडर में Yes. सब आ गए पहले first of all they have introduced air act then water act and later they have expanded it and mentioned the name that is environment okay environment protection act. So we're going to majorly focus over that act and go in depth with the act. So first of all, silent features of the Environment Protection Act, rule and amendment, which is the heading in your syllabus. See, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जब एस्टेब्लिश हुआ है वो 1986 में उसके पहले भी एक्ट आए हुए हैं ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोई एक्ट नहीं था पहले एक्ट था एयर एक्ट वाटर एक्ट 1986 के पहले ही आ चुके हैं ये सारे एक्ट लगभग लगभग जब अंग्रेजों का जमाना था तब से एक्ट शुरू है एयर एक्ट वाटर एक्ट और फिर बाद में डिस्कवर हुआ कि नहीं सिर्फ एयर और वाटर सिर्फ हवा और पानी से काम नहीं चलेगा हमें ओवरऑल प्रोटेक्शन चाहिए एनवायरमेंट की दैट्स व्हाई दे आर मेंशन एनवायरमेंट एक्ट ओके और इट इज नोन एज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट इज शॉर्ट फॉर्म इज ईपीए ओके ईपीए भी है उसका शॉर्ट फॉर्म और ये एक अम्ब्रेला एक्ट है अम्ब्रेला एक्ट मतलब एक ही छत्ते के नीचे सभी चीजें कवर हो जाएगी वाटर एयर एंड ईच एंड एवरीथिंग waste water their disposal norm their monitoring norms each and everything will going to be described every legalized point will going to be described in this act only there are several amendments in this act which will describe one by one point related to the air water monitoring wastewater discharge emissions from the industries and all of the stuffs
Okay, so this is known as the Umbrella Act legalization, empowering the central government to take comprehensive measures to protect the environment quality, set emission or discharge standard, and regulate industrial location. See, this act is not only for the central government but also state government can use this act. आखिर संविधान सभी को यूज करते हैं, है ना? बट ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में ही इसकी सबसे ज्यादा चीजें हैं, इसीलिए वहीं से ये सब चीजें शुरू होती हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर उसके अंडर में काफी सारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, MP, Madhya Pradesh State Pollution Control Board. Likewise, there are several state pollutions है, कंट्रोल बोर्ड है, SPCB भी कहते हैं, CPCB भी इन लोगों को कहते हैं, है ना? वो सभी इसी एक्ट के अंदर में ही अपने गाइडलाइंस के हिसाब से ही रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, एंड देन दैट विल बी coming into the parliament, and that will be sanctioned through the government and governmental bodies, and then only it will going to be enhanced, it get enhanced. Okay, so the key feature include strict hazardous substance management, power for the entry, inspection, and several penalty for the violations. See, we'll see one by one features of this EPA. Okay, first of all, centralized authority. How the central government has authority under this EPA. Okay, empowers the central government to take all necessary measures to prevent and control pollution, including restricting the industrial locations. See, पहले क्या होता था? कहीं पर भी इंडस्ट्री इन 18th century और समवेयर कहीं पर भी इंडस्ट्री, कहीं पर भी लेबोरेटरी हम एस्टेब्लिश कर सकते थे, घर में भी कर सकते थे, बट फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं, that sector should be, that industrial sector should be far away from the residential one. इसलिए फिर GIDC, MICB ऐसे कई सारे हमारे पर्टिकुलर शहर के हिसाब से नाम होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के, है ना? तो वहां पे इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया। ठीक है, सबसे पहले तो वो जरूरी था, क्योंकि इतना सारा इमिशंस होता था और वो सभी रेसिडेंशियल्स को भी हार्मफुल होता था, तो इसीलिए सबसे पहले तो वो चीज हुई। तो ये क्या सेंट्रलाइज चैनल करना जरूरी है। हमारा स्टेट काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी ज्यादा, यहाँ पर हम लोगों को हर चीज में विविधता देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इस एक्ट को सेंट्रलाइज ही कंट्रोल किया जाता है ना? ऐसा नहीं हो कि कल जाके हम किसी स्टेट को जैसे बजट में होता है, किसी स्टेट का ज्यादा बजट होता है, किसी स्टेट के लिए कम बजट सैंक्शन होता है, तो वैसा हम एनवायरमेंट को लेके नहीं कर सकते, है ना? कि किसी स्टेट को, हाँ आपके इसमें ज्यादा पेड़ है क्या, तो ठीक है आपको छूट दे देते हैं, आप ज्यादा इंडस्ट्री बनाओ। आपके इसमें कोई पेड़ नहीं है तो चलो अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अब आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं बना सकते। नो, that cannot be happen. That's why it should be centralized, regulated, and centralized applicable. Most important, it should be centrally applicable. Okay, because environment is not the part which is regulated for a country, it also regulated in terms of the world at the global level as well. जो हमारा इंडिया रिप्रेजेंट करेगा वही ग्लोबली भी रिप्रेजेंट होगा, so that's why it should be, the legalization should be centrally. That's the fact. Now the next thing is standard setting. What are the standard settings? Set the national standards for air, water, and soil quality, as well as the standard for the emission and effluent discharge. I have already discussed all of the standards related to this in a previous semester. एयर के भी, वाटर के भी मैंने IS कोड दिए हैं ऑलरेडी, है ना? एयर का भी इमिशन पोल्यूशन दिया हुआ है, सॉइल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए इसके लिए भी IS कोड है। सारे के सारे जो भी इमिशंस हो या डिस्चार्ज हो, वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज हो, वेस्ट वाटर का रीयूज हो इरिगेशन के लिए, हर किसी चीज के लिए CPCB ने नॉर्म्स बना के रखे हैं कि कितना परमिसिबल होना चाहिए और कितना डिजायरेबल होना चाहिए, है ना? तो वो सारे लिमिट्स बना के रखे हैं। तो दैट इज दैट इज द मैनुअल फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री।
वो उसी हिसाब से जब हम वो IS कोड, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए हमने IS कोड देखा था 10500/2012, उसमें ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड था। अब हम सोचते नहीं घर में हमारा पानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इतना ही ट्रीट करके हमको पानी पिलाना चाहिए, नहीं। अगर कल कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है और वहां के लोग काम कर रहे हैं और वहां पे ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि हाँ ये एज पर रूल्स है या नहीं। इफ इट इज नॉट अप टू द परमिसिबल लिमिट देन इट विल बी द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट एंड EPA। तो फिर उसको EPA के अंडर में आके पेनल्टी लग जाती है ना। So that is the guideline, that is the manual for the establishment of each and every industry, as well not only for the establishment but also for the regulation, for the smooth carry out action for the industry. Okay. सिमिलरली एयर का भी, सॉइल का भी, जैसी जैसी इंडस्ट्री होगी उस हिसाब से उसको सारी गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है। Next, coming towards the hazardous substance regulation, this is the most important point. Solid waste is not that much the problem as compared to the hazardous waste. सी सॉलिड वेस्ट में दो तरह के वेस्ट अगर हमने देखे हैं, सॉलिड वेस्ट में कई सारे वेस्ट होते हैं, हजार्डस, नॉन हजार्डस, है ना। बट एक सिंपल भाषा में बताऊं, सॉलिड वेस्ट में कैसे कहें अब, हाँ जैसे सुबह कचरे की गाड़ी आती है तो उसमें ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट होता है ना। तो वो जो वेट वेस्ट है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि वो अपने आप ट्रीट हो जाएगा, उसको कहीं पर भी डंप कर दो, आराम से वो 30 दिन में बहुत अच्छा फर्टिलिटी दे देगा जित जो भी सॉइल है उसे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ड्राई वेस्ट में। ड्राई वेस्ट जनरली पजेस 70 to 80% ऑफ द हजार्डस वेस्ट। उसमें फिर अगर डोमेस्टिक में देखो, डोमेस्टिक में ग्लास पीसेस, medicine, expired medicine, chemical bottle, and lot many things are there which are hazardous, and that cannot be treatable thing. वो इतने आसानी से ट्रीट नहीं हो सकती है, तो वो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए EPA के अंडर में हजार्डस सब्सटेंस रेगुलेशन बहुत जरूरी है फॉर एनी टाइप, नॉट ओनली डोमेस्टिक बट also for the industrial practices. Okay, strict procedure for the handling hazardous substances requiring compliance with regulatory standards. See, जब कोई हॉस्पिटल बनता है ना, तो उसका सबसे पहला पार्ट यही होता है कि आपके हॉस्पिटल में से कितना प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है, कितना बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है और कितना केमिकल वेस्ट निकल रहा है, ड्रग्स जो यूज करते हैं हॉस्पिटल वाले, है ना। sometimes they are getting expired, sometimes they don't need to use it. तो हॉस्पिटल के साथ में देखो फार्मास्यूटिकल का काफी ज्यादा टाई अप होता है, फिर वो फार्मास्यूटिकल को देते हैं, फार्मास्यूटिकल समटाइम्स ट्रीट करती है, नहीं करती और ऐसी। तो काफी ज्यादा उसमें क्या कहेंगे, क्वेश्चनेबल्स हो जाते हैं। बट वो हजार्डस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट इज नॉट द इजिएस्ट थिंग टू ट्रीट, इट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। जो कचरे की गाड़ी आती है वो जनरली बायोमेडिकल वेस्ट नहीं ली जाती है किसी भी हॉस्पिटल से, वो सिर्फ उनका ड्राई एंड वेट वेस्ट ही ली जाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट they have to dispose somewhere else, they have to make a tie up with a third party, some kind of MOE, something they have to set up, and then only they can dispose the biomedical waste. Same thing related to the other industry also. For example, the industry called paint, है ना, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो हम पेंट लगाते हैं ना, एशियन पेंट, रोलैक, रॉयल और समथिंग लाइक दैट, जो भी, आई एम नॉट हियर टू बट आई वांट टू गिव द एग्जांपल्स। सो वो जो पेंट्स है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दैट दे आर हैविंग यू नो कई सारे पेंट्स फ्लेमेबल होते हैं, कई सारे पेंट्स में हजार्डस केमिकल्स होते हैं। तो द वे उनका जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, उनके जो टीन के डिब्बे, जो पेंट के डिब्बे होते हैं, वो काफी डेंजरस होते हैं, दे कैन नॉट बी थ्रो इजीली आउटसाइड इन अ डोमेस्टिक। उसको ट्रीट करने के लिए एक अलग से उन्हें थर्ड पार्टी या तो फिर अपनी ही इंडस्ट्री में कोई ऐसा सेटअप बनाना होगा कि वो सारे टीन के डब्बे या जो भी पेंट, लेफ्ट ओवर पेंट के रेसिड्यूज के कंटेनर्स है, वो खुद अपने हिसाब से हैंडल करें।
तो ये क्या अलग चीज होगी? So this is the thing which is monitored and regulated under the heading of EPA. Now the inspection and analysis. Yes, this is the main part of the EPA. Okay, authority can enter any place for the inspection, examine equipment, and take the sample of air, water, soil for the analysis. See, रेड मूवी देखी है किसी ने? रेड ही है ना, अक्षय क्या अजय देवगन की? किसी ने देखी है रेड मूवी? रेड ही कहते हैं ना उसको, रेड पड़ी है ना, ऐसी समथिंग। किसी ने देखी है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। हेलो, या तो किसी ने देखी है रेड मूवी अजय देवगन की? नहीं देखी है? नहीं मैम। तो अभी आज फ्री होने के बाद संडे ही है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि वो मूवी देखो अजय देवगन की। 2 पार्ट्स में है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो वहां एक्चुअली हमें देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट हाउ दे आर रेगुलेटिंग द थिंग्स। क्योंकि ये जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उसके लिए जो भी बॉडीज होती है, वो क्या करती है ये हम आम इंसानों को नहीं पता है। बट वो मूवी में ना काफी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी सिर्फ पुलिस ही कुछ ये नहीं है कि हाँ हम वारंट लेकर आ गए, सर्च वारंट, अब हम सर्च करेंगे। सिर्फ पुलिस ही एक पार्ट ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करता है सर्चिंग के लिए ना। there are several body for several things. It is related, that movie is related for the income tax, but जो एनवायरमेंट का है, अब तक ऐसा कोई मूवी नहीं आया, एंड होपफुली आई एम विशिंग दैट सून इट विल गोना कम। बट क्या कहेंगे, हाँ, एनवायरमेंट के लिए भी रेट पड़ती है। कई सारी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर जो जीपीसीबी के कई सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सोर्स मिलता है, और फिर वो सब लोग चाहते हैं, और फिर वहाँ पे जाके रेड होती है, और फिर वहाँ पे एयर, वाटर और सॉइल की सैम्पलिंग वो लेते हैं, नॉइज देख लेते हैं, नॉइज लेवल कितना है, वेस्ट वाटर कहाँ ट्रीट हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, तो अब तक मुझे कभी ऐसा इतने सालों में एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, मैंने कभी कोई रेट पढ़ते देखी नहीं है। बट आई विश टू लाइक टू सी दैट थिंग कि हाँ ये कैसे So many. गवर्नमेंट रेगुलेट करता है करके, है ना। सो यस, the government body has authority. This act give a full authority to the particular person who is qualified and who is sanctioned through the central government for the inspection. He can go to any place related, with who is contributing for the emission, who is contributing for the pollution. He can go to that place and take samples of air, water, noise, soil, wastewater, whatever he is going to be required. तो ऐसे यहाँ पे इंस्पेक्शन और एनालिसिस होता है। फिर उनके पर्टिकुलर वो सैंपल में वो जो पर्टिकुलर सैंपल कलेक्ट करते हैं इंस्पेक्शन के बाद में, फिर वो उनकी लेबोरेटरी में जाते हैं, और उनकी लेबोरेटरी आप देखोगे तो इतनी हाई टेक लेबोरेटरी रहती है, इतने सही इंस्ट्रूमेंट है कि मतलब आपको टाइम भी नहीं लगता, इतना प्रिसाइज उनका एनालिसिस रहता है कि उसको ना कोई जवाब ही नहीं है। तो वहां पे वो एनालिसिस होता है लेबोरेटरीज में, एंड देन रिजल्ट विल कम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पेनल्टी विल गोइंग टू बी चार्ज। दैट इज द नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ ईपीए। सी द पेनल्टीज। अब हो गया सब चीज, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी, बॉडी बन गई, स्टैंडर्ड्स बन गए, सारे लिमिट्स बन गए, हजारदस सब्सटेंसेस को रेगुलेट कर लिया, इंस्पेक्शन भी हो गया, एनालिसिस भी हो गया, और पता चला कि नहीं सारे वायलेशन हो रहे हैं, तो वहां पे पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टीज, कॉन्ट्रावेक्शन द एक्ट can lead to the imprisonment up to the 5 years and fines up to the 1 lakh or both. Okay, depending on to the what we can say, if ये तो काफी कम चार्जेस हैं, मतलब 5 साल का इम्प्रिजनमेंट तो बहुत बड़ा चार्ज है, और पेनल्टी 1 लाख रुपीस, ये तो काफी कम है।
पर अगर ज्यादा हो तो फिर ये सारे रूल्स का ना स्ट्रिक्टनेस ज्यादा बढ़ जाए। 1 लाख रुपीज इज नॉट अ बिग डील फॉर अ मेजर कंपनी। ठीक है, ये तो मैंने होते हुए अपने इसमें भी देखा है। वायलेशन हो जाता है रूल का और पेनल्टी लग जाती है। कई सारी पेनल्टी 6-6, 7-7 लैक्स की होती है। हर एक वायलेशन के लिए 1 लाख रुपीज चार्ज होता है। 6 वायलेशन कर दो तो 6 लाख रुपीज हो जाता है। इम्प्रिजनमेंट इज द लास्ट केस होता है। मतलब एनवायरमेंट का मैंने आज तक ऐसा तो कोई देखा नहीं कहीं पर, न सुना है कहीं पर कि हाँ एनवायरमेंट का उसने वायलेशन किया और उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। जनरली पेनल्टीज आर नाही देयर नाही आता फॉर। हायकल 3 वर्षापूर्वी हायकल मध्ये झालेलं. हायकल कंपनी आहे ना, हो. हायकल म्हणून एक कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये तळजामध्येच होती. त्यांनी त्यांचं वेस्ट म्हणजे त्यांचा जो टँकर होता त्यांनी गुजरातला डॉक्युमेंटेशन आणि ते आणि तिकडे त्यांनी तो डिस्चार्ज केला आणि त्याच्यामध्ये कुठे बऱ्याच जणांची म्हणजे 3-4 कॅज्युलिटी झाल्या. त्याच्यानंतर ते सगळं डिग आउट झालं आणि त्यांच्या ऑक्युपायरला आणि म्हणजे बऱ्यापैकी म्हणजे काही आर्टिकल पण आलेले आहेत. Acha. I don't know related to this thing. Maybe I'm not in that state, that's why. पता नहीं, मुझे भी इतना नॉलेज तो नहीं है, पर अब तक मैंने नहीं देखा है। मे बी मिस की कर गई होगी मैं या समथिंग लाइक दैट वुड बी हैपन, बट आई मिस इट। बट डेफिनेटली आफ्टर यू सेड आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट। ओके, डेफिनेटली। पर हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि एनवायरमेंट काफी सीरियस टॉपिक है। अभी तो इतना नहीं लग रहा है, बट अगले 5 साल में ये इतना सीरियस होने वाला है, क्योंकि यू नो मैंने कल भी बताया था, हर किसी का पीक बहुत देर तक सस्टेन नहीं करता है। ये जो एनवायरमेंट का वायलेशन हो रहा है ना, एनवायरमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज क्या कहेंगे उसे, मिसयूज कर रहे हैं ना। तो ये धीरे 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 ग्राफ बढ़ता है। आपने देखा होगा, जब बेल शेप ग्राफ होता है तो वो जीरो से शुरू होता है, धीरे से बढ़ता है और एकदम से जाके पीक पे पहुंचता है। तो अभी वो सिचुएशन है कि हम एकदम से पीक पर पहुंचने वाले हैं। सडन विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम बहुत ही पीक पर पहुंच जाएंगे, जहां एनवायरमेंट पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुका होगा। तो ये ना बहुत जल्द 5 सालों में, विद इन 5 इयर्स, सब पूरे ग्लोबल लेवल पे ना एनवायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन कितना हुआ है ये हमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब पीक हमने देखा है, जे शेप कर्व जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये होने वाला है। 5 साल ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है 6-7 साल लगेंगे, क्योंकि बीच में कुछ कंट्रीज रियलाइज करेंगी नो वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ रिकवरी काइंड ऑफ थिंग, एंड दे विल डू सम काइंड ऑफ रिकवरी। तो कुछ हो सकता है, माइट बी मे नॉट बी, बट 6-7 साल अकॉर्डिंग टू मी। बट साइंटिस्ट मोस्ट प्रिफरली दे सेड 2031 is the last time where is the last year where we can see the peak of the exploitation of environment. Okay, at a global level they had said this sentence, but let's see, hope for the best. ऐसा ना हो। Okay, now the citizen suits provisions. What are the things for the citizens? Allows individual to file a complaint in a court related to the violation, provides 60 days notice is given. ये तो जनरलाइज हर किसी रूल में होता है, हर किसी सिटीजन के पास में ये प्रोविजन होती है ना। हर किसी एक्ट में ये सिटीजन के लिए, इंडियन सिटीजन अगर है तो उसके लिए प्रोविजन होती है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे भी कंप्लेंट कर सकता है। नाउ द पावर ऑफ डायरेक्शन, this is the thing. The government can issue direct orders, including closure, prohibition, or regulation for the industry and stoppage of the electricity or water services. Yes. यहाँ पे ये जो पेनल्टी है ना, ये काफी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है फिर इंडस्ट्री के लिए। फिर वहां पे कहीं जाके एक वो क्या कहते हैं, कहीं रूल्स को इंडस्ट्री रेगुलेट करती है। अगर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगा दे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई पूरा स्टॉप कर दे, पानी का सप्लाई पूरा स्टॉप कर दे,
तो ये सब चीजें हो सकती है ना। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट भी इस सब चीजों को हाई कोर्ट के साथ में टाई अप करके कई सारे ये चीजें कर सकती है और ऐसी होती भी है, राइट। सो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस act, as this act established in 1986, now we'll see the rules and amendments in this. The rules lay down the standards for the emission and the effluent discharge as well as procedure for the industrial management. See, there are several IS code for the manufacturing process of industry. हर एक इंडस्ट्री का कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए ऑलमोस्ट, और कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए वेस्ट वाटर का, इसके लिए हर एक इंडस्ट्री का एक आईएस कोड बना हुआ है। माइट बी यू नो रिलेटेड टू दैट आल्सो। तो वहां पे गवर्नमेंट ने ऐसा कोई चीज छोड़ी नहीं अपने से गलती करने के लिए कि कि हाँ, कल को अगर कुछ इंडस्ट्री आके मुझे कह दे गवर्नमेंट को कि नहीं आप कहीं बता दो कि हमने कहाँ वायलेशन किया है, तो कहीं लैक ऑफ पॉइंट हो जाए। नो, they have well documented each and everything, each and every emission, each and every standard, each and every discharge norm, each and every permissible desired limits, and the procedure to treat the wastewater and air treatment as well as. Okay, तो उन्होंने काफी अच्छे मैनुअल्स बनाए हैं इन अंडर द हेडिंग ऑफ आईएस कोड्स। ठीक है, उसके नंबर्स काफी अलग अलग हैं, आपको वो देखने के लिए मिल ही जाएंगे अगर आप किसी को भी सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैनुअल बनाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ईपीए अप्लाई करने से पहले मैनुअल बनाया है, और एवरी ईयर्स और विद इन 2 to 3 years इट गेट रिवाइज if necessary, it might be revised or not depending on to the necessity, but इतने जल्दी हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा अपडेट तो नहीं होता है। बट Environmental Protection Amendment Rule 2022 has been updated। 1986 में बना था, उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट आया है 2022 में। That standard for the effluent treatment, replacing fixed dissolved solid and total dissolved solid, and settling new limits for the common effluent treatment plants. See, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस में, एक बता देती हूँ। इससे पहले क्या हो रहा था 1990 और 1995 2000 तक, 2010 तक भी अगर आप देखो तो ये हो रहा था कि सारी इंडस्ट्री अपना अपना वेस्ट वाटर अपने अपने से ट्रीट कर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद में 2011 और 15 के बीच में ना ये कल्चर सडनली स्टार्ट हुआ कि हाँ, छोटी छोटी इंडस्ट्री है आसपास है और ज्यादा पानी तो ज्यादा वेस्ट वाटर जनरेट नहीं हो रहा है, दे आर थिंकिंग लेट्स कम टुगेदर एंड विल ट्रीट द वेस्ट वाटर टुगेदर सो वी कैन सेव आवर एनर्जी, time, money, as well as manpower. That's why they are setting 2 to 3 industry come together and setting up some effluent treatment plant and define it as a common effluent treatment plant. Okay, so meanwhile same thing is going to be applicable for the another industries, क्योंकि सारी इंडस्ट्री तो एक ही जगह गवर्नमेंट ने लोकेट कर दी है, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप रेसिडेंशियल एरिया के पास में इंडस्ट्री नहीं बना सकते, अपना कोई अलग से जगह देख लो। तो सारी इंडस्ट्री एक ही जगह पे, तो इंडस्ट्री ने सोचा हाँ ठीक है चलो जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा हम लोग भी करेंगे। तो सडनली जो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो 2010 के बाद में काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस होते गया यहाँ पर इंडिया में। तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड कोई लिमिट्स नहीं थे, तो इसीलिए वहां पर 2022 में ये एक नया सेटअप आया कि हाँ अब हमें जो भी ट्रीटमेंट कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है सीईटीपीज है उनके लिए एक नए से डिस्चार्ज नॉर्म निकालना जरूरी है। ठीक है, एंड नाउ इट इज गेट वेल डेवलप, बहुत अच्छे तरीके से सीईटीपी डेवलप हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े लार्ज स्केल पे डेवलप हो रहे हैं, मिलियन लीटर पर डे तो ट्रीट हो ही रहा है। सम ऑफ द मेजर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट देख लो तो सूरत में पांडेसरा में है वो 500 मिलियन लीटर पर डे का ट्रीटमेंट प्लांट है सीटीपी। तो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, अगर रूल्स अच्छे होते हैं तो फिर उस हिसाब से काम करना भी बहुत अच्छे से हो जाता है, लाइक दैट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दे हैव इंट्रोड्यूस द standard for the fixed dissolved solid and total dissolved solid. See, fixed volatile solid or fixed solid dissolved solids.
पहले तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल देखते हैं। वोलेटाइल जो कि बहुत जल्दी क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बहुत ही कम इसमें टेम्परेचर में, नियरली 100 सॉरी 200 to 250 प्लस माइनस ऐसा कुछ तो है, वहां पे वोलेटाइल सॉलिड्स आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे उस टेम्परेचर पे। बट जो फिक्स सॉलिड्स होते हैं ना, वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, उसे हम नॉन वोलेटाइल और फिक्स डिसॉल्व सॉलिड्स कहते हैं। तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। ऐसे सॉलिड्स अगर वेस्ट वाटर में है जो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहे, टेम्परेचर से नहीं हो रहे हैं, तो बाकी किसी और से होना तो मुश्किल ही है। तो उसके लिए डिस्चार्ज नॉर्म बनाने के लिए एक अलग से उन्होंने अपडेट दिया है। ठीक है, तो ये 2 अपडेट हुए हैं। Now there are another amendment, that is the Jeevan Vishwas Act in 2023, which is introduced discrimination certain provisions and increase the fine penalties with the clause to the raise penalty by 10% every 3 years. ओके तो यहाँ पे एक जन विश्वास एक्ट भी लाया गया ताकि लोगों को भी लगे कि नहीं, गवर्नमेंट कुछ तो एनवायरमेंट को रिलेटेड कर रही है, बस पेनल्टीज के पैसे बढ़ाए गए हैं एंड दैट्स इट। दैट्स इट, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। नाउ सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। एक्ट का इम्पोर्टेंस तो पूछना ही नहीं पड़ता। एनवायरमेंट के रूल्स मतलब अगर ना हो तो क्या कितना डेंजरस हो जाए सारी चीजें, इसका तो कोई मतलब अंदाजा ही नहीं है ना। सो इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है। माइट भी इसी के अराउंड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग्स एंड रूल्स। सी if somebody did not recognize, yes, this is a hazardous waste, then see उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है सिर्फ नॉन आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्पोज, ये तो बहुत दूर की चीज है। अगर आइडेंटिफाई नहीं किया, गवर्नमेंट ने वही किया है। हजार्डस वेस्ट की कैटेगरीज में इतनी लिस्ट दी गई है कि ये सारे हजार्डस वेस्ट होते हैं, है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन ही बहुत जरूरी है, जो कि ये रूल देता है। फिर उसकी प्रोसीजर रहती है, उसे हैंडल कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है और ट्रीट कैसे करना है, दैट इज अनदर पार्ट, बट द आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, identifying the hazardous waste, which gives the which very precisely defined under this act. Okay, so managing and handling this, that is a second most important thing which is done under this EPA. Okay, that is handling, storage, dispose and treatment also. They are suggesting yes, you can treat. अभी कई सारे ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे सिर्फ डिस्पोज पे नहीं, ट्रीटमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है ना। Now, next, moving toward the next, that is in environmental impact assessment notification. It is a mandatory environmental clearance for a large scale industry or infrastructure projects. प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले तो EIA करना ही करना है। आप LCA भले ही प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद करो, लाइफ साइकिल असेसमेंट, बट EIA है तो करना ही करना है ना। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, वो रूल ही कहता है। तब भी किसी भी इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे सैंक्शनिंग मिलती है, अदरवाइज उसे सैंक्शन मिलता ही नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ऑब्वियसली कोई अगर इंडस्ट्री ऐसी बन जा रही है, कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है कितना वो एयर पोल्यूशन इमिशन कर रही है, कितना वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कर रही है, कितना ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर रही है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ट्रीट कर भी रही है नहीं कर रही है, सॉलिड वेस्ट को कैसे हैंडल कर रही है, डंप कर रही है कहीं पर भी, अगर ये कोई मॉनिटर, कोई उसको असेस ही ना करे, तो कितना ज्यादा एनवायरमेंटल एक्सप्लॉइटेशन होगा, है ना। तो इसका कोई अंदाजा ही लेकिन नहीं, तो कोई ये भी, आया हेलो मैडम, जी हेलो, लेकिन जी कोई जी भी बोलिए। कंपनी अपन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम्म पहले ये सब अपनों को एज्यूम करना पड़ता है ना, हाउ मेनी हजार्डस वेस्ट इज रिक्वायर्ड टू देयर, और तुम क्या क्या उधर यूज करने वाले हो, वाटर, एयर, इमल्शंस, और कौन सा सी टाइप का मटेरियल्स, हम्म एंड इट विल बी द ऑलरेडी मेंशन इन द फॉर्म ना।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सब सारी चीजें फॉर्म में ही मेंशन होती है। इटसेल्फ यू हैव टू एनालाइज समथिंग। तो एआई एक्सपर्ट जनरली क्या करते हैं, जनरली जो एआई के एक्सपर्ट हैं वो उनका थंब रूल है कि हाँ, अगर कोई मुझे इंडस्ट्री बनानी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कपड़े की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनानी है। ठीक है, मेरी स्केल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, मेरे इंडस्ट्री में हर रोज 100 टन कपड़ा मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, लेट्स अज्यूम इट। ओके, तो वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है चलो मैं 10 ऐसी इंडस्ट्री देखूंगा इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, कि जो लगभग लगभग मेरे ही जितना कपड़ा बनाती है ना, ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश वेल नोन इंडस्ट्री जो बहुत अच्छे से रेगुलेट हो रही है। तो फिर वो वहां के ईआई रिपोर्ट पहले लेते हैं। ठीक है, 10 नहीं मिले तो 5 मिले, और फिर उस हिसाब से अपना ईआई का रिपोर्ट बनाते हैं। जनरली दिस इज अ प्रैक्टिस ड्रिवन बाय द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसर। ओके, वो यही करते हैं, और उस हिसाब से फिर अपना फॉर्म बना के फिर गवर्नमेंट के सामने देते हैं। और ऐसा नहीं है कि फॉर्म में सारी चीजें मेंशन होती हैं, हाँ, आपको अपने से बहुत सी चीजें लिखनी पड़ती है ना। तो इस तरीके से एआई वर्क करता है ना। नोटिफिकेशन फिर बाद में गवर्नमेंट से क्या कहते हैं उसको, सैंक्शनिंग मिलती है, फिर पब्लिक नोटिस लगती है, फिर वो कुछ दिन चलती है, फिर काफी लंबी प्रोसीजर है एआई की। Let's not dive into that because it is in your syllabus. Might be third or fourth unit was there. ओके, तो हम वो ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, सो लेट्स नॉट। तो इस तरीके से ही एआई वर्क करता है। हाँ, कुछ अगर कुछ नया बनाना है, कुछ नई प्रोडक्शन है आपकी, कोई एक नई ही मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, तो वहां थोड़ी दिक्कत होती है। बट इफ यू हैव द रॉ मटेरियल सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। एक तरीके से अंदाजा लग ही जाता है, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज में भी कोई इमिशन स्टैंडर्ड दिए ही होंगे, है ना। तो वहां कुछ एक अंदाजा लग जाता है, और इस हिसाब से भी हम रिपोर्ट बना सकते हैं। बट थंब रूल तो यही कहता है, इंडस्ट्री का थंब रूल यही कहता है कि आप कोई भी नई अगर इंडस्ट्री बना रहे हो तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लो आसपास। वैसे भी ऐसे ही चलता है, धंधा वाले तो यही कहते हैं, इंडस्ट्रियल वाले, कि अपना कुछ नया बनाने से पहले बुजुर्गों से सीखो फिर कुछ नया बनाओ, ऐसे ही तो कहते हैं, है ना। तो सेम थिंग, एआई भी वैसे ही वर्क करता है। So coming towards the next, that is a importance. That is a okay. That importance environmental rule, that is a biomedical waste managing and handling the rules. I have already told you the procedure for the handling hospital waste. Okay, it define very clearly कि कैसे biomedical waste को handle करना है। See, biomedical waste में क्या होता है, अगर सबसे डेंजरस चीज अगर आप देखो, कैंसर हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ ऑपरेशंस होते हैं, फिर वो ट्यूमर जो निकालते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। अगर कोई भी ब्रेन ट्यूमर हो या कोई भी एक अननेसेसरी पार्ट अगर उन्होंने बॉडी से निकाला है, तो उसे वो ऐसी जनरली डिस्पोज नहीं कर सकते। जहां हम देखते हैं कि लैंडफिल साइट्स होती हैं, वहां पे सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है, वैसे नहीं डंप कर सकते। देयर आर सर्टन प्रोसीजर to treat the biomedical waste. Yes, it is completely oxidizable. वो completely oxidize हो जाएगा after certain time of period. But still, there are certain procedure to treat that waste. Okay, and there are certain procedure for handling, storing as well as, और उसे treat इट करना इज ही करना इंसिनरेटेड ना जरूरी मैडम? है। जी इंसिनरेटेड करते हैं ना, मतलब वो हाँ लैंडफिल के हाँ, बाद वही एक मोस्ट ऑफ द मतलब टाइम इतना वो लोग नहीं लेते हैं कि उसे ऑक्सीडाइज करेंगे ये क्या, क्योंकि हाईली डेंजरस चीज है, उससे कोई खेल तो नहीं होगा। वहां पे वो इंसिनरेट ही करते हैं। पायरोलिसिस अभी नई टर्मिनोलॉजी आई है बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए, काफी जगह पे है भी। छोटे छोटे एक क्या कहते हैं हम लोग, जैसे ओवन होते हैं ना, वैसे वैसे छोटे छोटे हर एक ऑटोक्लेव। हॉस्पिटल। हाँ हाँ, ऑटोक्लेव जैसे, वैसे ही छोटे छोटे पायरोलिसिस कंटेनर हॉस्पिटल में मेंशन होते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। जनरली वो अपनी बायोमेडिकल फैसिलिटी बताते नहीं है, और आप अगर एनवायरमेंट का नाम लेके जाओगे तो वो बताएंगे ही नहीं। बट मार्केट में भी अवेलेबल हैं, काफी ज्यादा पब्लिसिटी होती है। जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने ये बनाया है पैरालिसिस कंटेनर,
वहां पे वो उसको इमीडिएटली लेते हैं और वो करते हैं, है ना। और अभी इतना इशू है ये बायोमेडिकल वेस्ट को लेके कि मैं बता नहीं सकती। कई लोग प्रिजर्वेंस प्रिजर्व भी करते हैं, डेंजरस चीजें नहीं, बट अगर किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो वो पुराना लीवर वापस रखवाते हैं, प्रिजर्वेंस करते हैं। फिर बहुत सी चीजें, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ये इतना मतलब क्रुशियल क्रिटिकल टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। किसे डिफाइन कर रहे हैं वेस्ट है, किसे नहीं डिफाइन करें। कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कॉलेजेस भी रन करते हैं, तो वो हॉस्पिटल के जो भी पार्ट्स निकलते हैं वो एज अ प्रिजर्वेंस के लिए रख देते हैं, फिर उसको किसी सॉल्यूशन में मिक्स करके बॉट कांच की बरनी में भर के डिस्प्ले करते हैं, है ना। और कई सारे आजकल तो बोन मैरो प्रिजर्व हो रहे हैं। ठीक है, आंखों का तो सुना ही था, मरने के बाद में आंखें भी प्रिजर्व होती है। आजकल कई सारी चीजें प्रिजर्व हो रही हैं। जो बच्चे की नाल रहती है जब वो पैदा होता है, नाल ही कहते हैं हमारे इसमें, आप लोग पता नहीं, एमनिकल कॉर्ड प्रिजर्व हो रहे हैं। तो ये ना काफी क्रिटिकल टॉपिक है। इस वेस्ट को हैंडल करने वाला एक एनवायरमेंटलिस्ट कम, वो मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं। फिर वो मेडिकल स्टूडेंट एनवायरमेंट की डिग्री लेके और फिर इस फील्ड में आता है, तो दैट इज वेरी, हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। Okay, coming towards the next, that is a coastal regulation zone. This is the, this is a wide topic related to this. Regulate activity in the coastal areas. See, coastal areas में infrastructure इतना बनता है कि हमारे इंडिया में सिर्फ कोस्टल रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनता है, रोड, रेलवेज, टनल एंड ऑल ऑफ द स्टफ, सम काइंड ऑफ, क्या कहेंगे उसे, बंदरगाह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोर्ट्स, है ना। तो सी पोर्ट्स बनते हैं, तो लाइक दैट। तो उनके रेगुलेशंस भी होते हैं। अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो फिर कोस्टल में समुद्र का पानी, अगर आप गन सब चीज वहीं डाल दोगे, ऑलरेडी पूरे दुनिया का पानी सी में जाता है, वो ऑलरेडी पोल्यूटेड है, और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वहां पर भी पोल्यूशन करेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है विच आर एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल फ्रॉम द सी एरियाज, तो अगर वो वहां पे कोई ऑयल स्पिलेज हो जाता है तो ऑलमोस्ट उस सी की, जो भी सी की रहती है, सी में जितनी भी मराइन लाइफ है वो ऑलमोस्ट वहां पर ना डेड ही होती है, वहां पे देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ऑयल स्पिल इतना ज्यादा हो जाता है। फिर उसे रेगुलेट करने के लिए भी इस एक्ट में काफी ज्यादा प्रोविजंस दी गई हुई है। ठीक है, मेरे पास में है इसकी सॉफ्ट कॉपी, कोस्टल वाली और बायोमेडिकल वेस्ट वाली भी। अगर किसी को इंटरेस्ट है इसके बाद पढ़ने के लिए तो मैं वो शेयर कर दूंगी, ठीक है, तब आप आराम से पढ़ सकते हैं। तब तक कोई I'm interested because I'm working in oil and gas. Yeah, I'm interested. who is he? Sorry. Okay, Matre sir, विश्वनाथ। definitely. या विश्वनाथ जी, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप बस मुझे एक डीएम कर दीजिए, मेरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप पे है, ठीक है। मेरे पास में है या इसके डॉक्यूमेंट्स। ऑयल वाले तो काफी अच्छे हैं, और वो भी मैं दे दूंगी। और मराइन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे मैनग्रोव्स हो गया और कोई वेराइटी हो गई, तो उससे भी कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं अंडर दिस हेडिंग, क्योंकि उसे हमें निकालना ही पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड भी मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स, आई विल शेयर इट विथ यू, Yeah, ओके। in India, we are best marine contractor, विच इज इट? L&T. अरे फिर तो आप ही लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने आपसे लेना चाहिए, आप हमसे मांग रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई। See, nearby, see, myself and HSC head of marine sitting nearby. But yes, I want from you so that I will check ours one. No problem. अरे आप ही लोगों के पास में तो होंगे, एलएनटी के पास में तो काफी ज्यादा रूल्स एंड Yeah, रेगुलेशन ऑलरेडी रहते we हैं। have. But new हाँ one, फिर yes, we have to check again and again. We are checking. या Now I'm preparing this waste procedures. Yeah, definitely. I'll share it Yeah. with you. For any kind Okay. of difficulty, you can contact me. Okay. And I'll Yeah. share Okay. all of the documents, whatever I have with you. Okay. Yeah. Now, But coming.
See, Bhattacharya is there. He is working with marine and offshore also. He's also Yeah, Anjan yeah. Bhattacharya. He is attending lecture. Okay. Okay. Both are you welcome to the lecture, and yes, I'll definitely share. Okay. Now, coming towards this philosophy and major provisions in the Environmental Protection Acts. See, what are the major provisions has been made by the government? Okay, the first of all, that is the Environmental Protection Act, EPA is a landmark umbrella, जो कि मैंने already बताया है. It is enacted after Bhopal gas strategies और 1984 में जो हुई थी, है ना, गैसेस इमिशन हुए थे और सडनली लोग क्या कहते हैं 5 से 10 मिनट में काफी ज्यादा फेटल हुए, काफी ज्यादा इंज्योर हुए. तो वो देखकर फिर बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना है. द स्टोरी बिहाइंड लाइक दिस. अदरवाइज वहां पहले एयर और वाटर एक्ट था, ठीक है. Then as well as next that is 1972 क्या कहेंगे Stockholm's conference designed to provide comprehensive framework for the environmental protection as well as, ठीक है. तो ये जो चीजें हैं इसी के वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने EPA एक्ट बनाया है. सी it is known as generally in parliament most of the people said environment act. It is not the environmental protection act. It was written in a protection. एनवायरमेंट एक्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा इसमें बहस भी हुई थी, स्टोरी भी है, काफी ज्यादा वीडियोस भी है कि प्रोटेक्शन देना चाहिए इसमें नाम में या नहीं देना चाहिए. फिर फाइनली कंक्लूड किया गया नहीं, ब्रैकेट में हम प्रोटेक्शन लिखेंगे और एनवायरमेंट एक्ट ही कहेंगे क्योंकि प्रकृति को हम बचा रहे हैं, मतलब हम भगवान से बड़े हो गए और इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से हम आम इंसान भगवान नहीं बन सकते. तो यही आर्ग्यूमेंट था इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो. दैट्स व्हाई that protection is written under bracket, okay, and in the parliament it is mandated to use this only the Environment Act 1986, okay. The people are not going to pronounce this Environmental Protection Act. वो तो हम हमारे सहूलियत के लिए बोल रहे हैं, है ना. जैसे अभी नया टॉपिक था भारत बोलो, और फिर देखा जाए तो संविधान में लिखा था कि इंडिया ही भारत है ना. तो इस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट हुआ था. दैट्स द बेसिक थिंग, ओके. और भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बाद में ही फिर सब लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ अब हमें ये एक्ट की जरूरत है, कि हाँ बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है हर जगह पर, है ना. तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड इट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज it empowers the central government to take all necessary measures to protect and improve the environment, filling the gaps earlier sector specified laws like water and air. जैसे कि मैंने बताया वाटर एक्ट जो है वो 1974 में था, देन एयर एक्ट 1981 में बना है. तो ये क्या गैप्स को फिल करता है. अम्ब्रेला एक्ट, ओके. इट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स related to this EPA? First of all, it is an umbrella act. It functions as a overarching framework enabling the center to coordinate activities of the state boards and the other agencies. कई सारी जैसे मैंने बताया SPCBs होती हैं वो हैं, और अदर एजेंसीज भी जो नॉर्मली प्राइवेट एजेंसीज भी आजकल मॉनिटर कर रही हैं ये सारी चीजें, है ना. और एक NAC नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरी ऐसे समथिंग कुछ तो बॉडी है, वो लेबोरेटरीज को मॉनिटर कर रही है जहाँ पे ये सारे सैंपल्स टेस्ट होते हैं. तो ये क्या एक सेंट्रलाइज चैनलाइज बन जाता है. अगर ये सेंट्रल नहीं होता, फ्रेगमेंटेड रहता, तो हर स्टेट अपने हिसाब से एक अलग से रूल बनाता है एंड इट विल गेट कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द इंडिया. दैट्स व्हाई ये सेंट्रलाइज चैनल किया गया, ठीक है. देन नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिला है इसे, इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253. इट एक्ट ऑन आर्टिकल 48A स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, आर्टिकल 15AG सिटीजन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नेचर, ओके. सो इस तरीके से इसके 2 आर्टिकल्स हैं. Then principles, if we are talking about the principles, that is adopt the polluter pays principle and precautionary principle to prevent the environmental degradation. सबसे पहले आता है इसमें 2 ही चीजें हैं. पोल्यूटर पेस जो कि वन ऑफ द पिलर ऑफ EM,
है ना, जो पोल्यूशन कर रहा है उसी को पे करना है, बाकी कोई और पे नहीं करेगा। पहला प्रिंसिपल इसका ये हुआ। दूसरा हुआ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दैट आई ऑलवेज सेज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। बस ये दो प्रिंसिपल है इसके, और इसी पे बेस करता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देयर माइट बी चांसेस दैट एमसीक्यू विल बी गोइंग टू बी अराइज। ओके, तो इस तरीके से इसके प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हुए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंट डिसीजन फ्रॉम द स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंसेस। जो भी ग्लोबल लेवल पे स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस होती है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और वहां पे जो डिसीजन लिए गए वो इंडिया में अप्लीकेबल होने चाहिए, तो ये वो इंश्योर करता है। क्रिएटिंग अथॉरिटी टू हैंडल द हजार्डस सब्सटेंसेस, देयर आर डिफरेंट अथॉरिटी to handle each and every pollutant under the heading of hazardous waste. ओके, तो अलग अलग अथॉरिटी बनी है। एयर के लिए अलग डिपार्टमेंट है, नॉइस का अलग डिपार्टमेंट है, वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, सॉइल, हर किसी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग है, उनके एक्सपर्ट्स अलग अलग होते हैं। लाइकवाइज these are the things. Now the protecting the right to life, okay, by ensuring safe environment, this is the thing. ओके, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ। अगर कोई भी सिटीजन है, कोई भी आम आदमी है, अब जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, है ना, और मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, बट मेरे आसपास कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और फिर वहां से वेस्ट पोल्यूट कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग मुझे बेनिफिशियल हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी ओनली, बट ऐसे कई सारे लोग हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स आर लाइक दैट ओनली। तो उनके प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है मैं यूज कर रही हूँ, उनके प्रोडक्ट्स कोई और यूज कर रहा है, कोई और अदर बॉडी यूज कर रही है ना, बट उसकी वजह से मुझे भी तो अफेक्ट पड़ रहा है ना। तो ये तो कोई मेरे जीने का तरीका नहीं हुआ, और हमारा संविधान यही कहते हैं कि राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीक एंड राइट टू क्या कहेंगे, स्टडी, ये सारे राइट्स एक नॉर्मल सिटीजन को दिए गए हैं। राइट ऑफ हैप्पीनेस, राइट टू हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस, वो सब चीजें दी गई है ना। तो ये जो लॉ है ईपीए, ये इंश्योर करता है हर एक सिटीजन का कि वो सेफ है ना, से सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है जीने के लिए। अगर ये इंश्योरेंस नहीं रहता, अगर ईपीए लाने के बाद में भी ये इंश्योरेंस नहीं रहता कि हाँ आप आसानी से आराम से सेफ एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, तो फिर इतना ज्यादा दिल्ली में जितना पोल्यूशन हो रहा है उस पर इतना बवाल होता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं कि हाँ हमारी जिंदगी खतरे में, और ऐसा हो भी रहा है। कई सारे वहां पे हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कई सारे रेगुलेशंस गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। दैट इज अंडर द एक्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ओके, अंडर आर्टिकल 21. So now we'll see major provisions of the act. First, power to take the measures. Okay, section 3 में दिया गया है, central government can set the standards for each and every quality, so air, water, soil, solid waste as well, and restrict the industrial location. Now the power to issue the direction as well as section 5 इसका बताता है, that is center can issue the direct order for the closure, provision and all of the stuff. फिर सेक्शन 8 में हजार्डस सब्सटेंस को, देन सेक्शन 15 में पेनल्टी क्लॉज दिया गया है, देन सेक्शन 19 में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस दिया गया है, परमिट सिटीजन टू कंप्लेन द फाइल, है ना। देन सेक्शन 22 में बार जूरी डिक्शंस दिया गया है, जिसकी प्रिवेंशन सिविल कोर्ट फ्रॉम एंटरिंग सूट्स रिगार्डिंग एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे सेक्शन है, और यहाँ पे दिया गया है, मेजर रूल्स दिए गए हैं, थोड़े बहुत मैंने मेंशन किए हैं, और मेजर जो लिखे हुए वही बस मेंशन किए। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला है ईपीए खुद में है अपना एक, जो इमिशन और इफ्लुएंट डिस्चार्ज को डिफाइन करता है। देन ईआई नोटिफिकेशन 2026 मैंडेटरी असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग पब्लिक कंसल्टेशन।
फिर उसके बाद में हजार्डस वेस्ट मैनेजिंग हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 1989 में, फिर उसके बाद रिवाइज हुआ 2008, फिर 2016 में। ये हजार्डस वेस्ट को हैंडल, स्टोरेज, डिस्पोज और अभी ट्रीटमेंट भी इसमें आ गया है, हैंडलिंग स्टोरेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। आई हैव टू अपडेट दिस स्लाइड, ओके। तो ट्रीटमेंट भी आ गया है। देन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग से 1998 में बनाया गया है रूल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। देन ई वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए भी रूल है, 2011 में एस्टेब्लिश किया, देन रिवाइज हुआ 16, देन 2022 में रिवाइज हुआ। मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अभी क्या मैन्युफैक्चर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। हम कई जगह पे देखते हैं, कई सारे मेजर ब्रांड्स ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कि जो कहते हैं हाँ पुरानी चीज दे दो और नई चीज ली जाओ, है ना। तो वो कोई ऑफर नहीं होता है, उनको दिखाना होता है गवर्नमेंट को कि हाँ हमने ये रूल अप्लाई किया है हमारी इंडस्ट्री में, है ना। मैं नाम नहीं लूंगी बट कई सारे ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि रूल ये बनाया गया है कि ई वेस्ट की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट को छोड़ के। डोमेस्टिक आम इंसान जो कचरा ई वेस्ट का निकाल रहा है, हमारे घर से जो भी निकल रहा है वो छोड़ के, बट आप क्या कर रहे हो, आप एज ए इंडस्ट्री आप क्या कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, वो कहते हैं हाँ ठीक है पुरानी चीजें दे दो और फिर नई चीजें ले जाओ। और इतना छोटा सा एडवर्टाइजमेंट होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, और फिर बाद में कहीं तो पता चलता है अरे ऐसा भी था क्या, तो मैं दे देता पुराना और नया ले लेता। वो होता ही इसलिए बस दिखाने के लिए, कुछ तो कुछ तो 10-15 चीजें ले लेंगे और बताएंगे हमने 100-200 ली हैं, और फिर उस हिसाब से so the things are happening. Now coming towards the next major rule, that is a plastic management rule, and it was established in 2016 and updated in 2020-21, which is regulating plastic usage and disposal. अभी single hand use plastic बिल्कुल completely ban हो गई है कई सारे states में। हाँ हमें अभी भी देखने के लिए मिल रही है, आई गेस महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक ऑलमोस्ट बैन है। अभी पता नहीं करंट सिचुएशन, बट जहाँ तक मुझे पता है वहां तक तो बैन ही है। महाराष्ट्र से तो आप लोग हो ही, आपको ज्यादा पता होगा। ठीक है, हम यहाँ पे पॉज लेते हैं। तो और इस तरीके से हमारा सेकंड यूनिट लगभग ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। नेक्स्ट होपफुली इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश दिस, ओके। एनी डाउट रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू Madam, यस। do share the presentation, means ये content है जो ये कल तो और हाँ आज हाँ के हाँ लेक्चर का हाँ हाँ डेफिनेटली आई शेयर इट ऑन अ ग्रुप। आप प्रीवियसली देना है ना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको यूनिट 2 की सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। एनीथिंग एल्स? ओके। अभी जितने भी लेक्चर हुए ना मैडम, जी उसका वाला है ना, हमको आपने ऐसा यूट्यूब के हिसाब से पहले भी शेयर किया था, उसको भी हमने सेव किया है। वो सेम थिंग अगर अभी होगा ना, तो हम लोग बाद में आराम से उसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली आई विल मेक श्योर। मतलब मैंने पहले भी आइडिया दी हुई है सर को कि सर काफ़ी कम स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, और जनरली मैक्सिमम लोग लास्ट में ही वीडियो देखेंगे, तो मैंने सर को कहा है ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है, यू डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई विल मेक श्योर दैट इट विल गोइंग टू बी रेगुलरली अपडेटेड ऑन टू द ग्रुप, ओके। एनीथिंग ओके एल्स? ओके, थैंक यू मैडम। नो थैंक यू। या यू आर वेलकम। एनीथिंग एल्स? Okay then, see you for today. We'll meet on next Saturday. Okay, bye bye everyone. Okay. Bye. Bye. Bye.